Good morning, students. Today we will learn friction unnecessary evil. So, is it easier to hold a cooler, earthen pot, or a glass tumbler? We all know that we can easily hold cooler because cooler is made of what? Clay, and the outer surface of cooler is rough, and because of the rough surface cooler is having more friction, and due to the friction we can easily hold the cooler. And the glass tumbler, because the glass tumbler the outer surface is smooth, and the smooth surface having less friction, so there we cannot having much grip, and it is difficult to hold a glass tumbler. So it is clear that the surface of a glass tumbler is smooth while cooler is rough. That's why glass tumbler slip but cooler does not. So holding a glass tumbler is difficult than to hold a cooler because we can hold the things that having what? Friction, having what? Rough surface. And you can also experience that if the glass is having the outer surface of glass, if the outer surface of glass is having what? Oil or greasy, then we cannot hold it. है ना? Why we are not able to hold it? Because there is almost no friction. Friction is negligible, and because of that we are not able to hold the glass if it is greased or oiled. Okay, so we can hold the things only if friction is there. So friction is necessary for us. Okay. Now take the another example. What would happen if there were no friction at all? See, students, suppose you are running or you are in motion. And you are running, and that means you are in motion. If the ground is having no friction, then what will happen? What will happen? You are not able to stop yourself, है ना? You that means if there is no friction, then you are in being in motion. You are in being in motion, and you are not able to stop yourself, है ना? अगर सरफेस पे क्या है? फ्रिक्शन नहीं है, अगर आप मोशन में हो, सपोज आप रन कर रहे हो और आप रन करते करते एक ऑयली, सपोज अगर आप रन करते करते एक ऑयली सरफेस पे चले गए हो जहाँ पे बिल्कुल भी फ्रिक्शन नहीं है, तो वहां पे क्या होगा? वहां पे आप स्टॉप नहीं कर पाओ, आप रन करते ही रहोगे, आप मोशन में ही रहोगे, आप अपने आप को स्टॉप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज वहां पे फ्रिक्शन नहीं है ना। और सपोज अगर मान लो कि आप रेस्ट में हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप रेस्ट में, आपकी बॉडी रेस्ट में है, सो यू आर नॉट एबल टू बी इन मोशन। आप उस वक्त मोशन में नहीं आ सकते अगर आप रेस्ट में हैं। और अगर अगर आपको वॉक करना है, अगर मान लो सरफे वहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, तो आप वॉक भी नहीं कर सकते, बिकॉज फॉर वॉकिंग, फॉर रनिंग, फॉर रनिंग, ड्राइविंग द व्हीकल्स, फॉर चेंजिंग द डायरेक्शन, फॉर होल्डिंग एनीथिंग, फॉर राइटिंग, फॉर एवरीथिंग वी नीड व्हाट? फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो हम चल नहीं सकते हैं, हम वॉक नहीं कर सकते, हम रन नहीं कर सकते हैं, ठीक है? फॉर ऑल दैट वी नीड व्हाट? फ्रिक्शन। ओके, नाउ सी, कुड व्हीकल मूव ऑन द रोड, है ना? अगर रोड पे फ्रिक्शन नहीं होगा तो कुड व्हीकल मूव ऑन द रोड, है ना? अगर मान लो आपका जो रोड है वो बिल्कुल स्मूथ है, एकदम स्मूथ है, वहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, सो क्या आप वहाँ पे साइकिल राइड कर सकते हो? यू आर एबल टू राइड योर बाइसिकल? नो, है ना? आप नहीं चला सकते ना। इफ देयर हैड बीन नो फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स ऑफ द ऑटोमोबाइल एंड द रोड, they could not be started or stopped or turned to change the direction of motion. Okay, that means for running and for starting or for stopping the motion or to change the direction, we need what? Friction. You could not write with pen or pencil if there was no friction, because when we write with pen or pencil, then the tip of pen rub with the paper and they create what? Frictional force, and due to that only we are able to write. आप देखो चौक से जब ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं तो चौक जो होती है वो ब्लैक बोर्ड पे क्या होती है? रब होती है। चौक जो ब्लैक बोर्ड का जो सरफेस है और चौक का जो सरफेस है दोनों इरेगुलर होते हैं, रेगुलर सरफेस नहीं होता है। तो उससे क्या होता है कि चौक जब ब्लैक बोर्ड पे रब होती है
तो chalk का कुछ part, the particles of chalk stick on the blackboard and that we are able to write on blackboard. सपोज अगर ब्लैकबोर्ड पूरा वो हो जाए, आपका स्मूथ हो जाए ब्लैकबोर्ड, सपोज मान लो ब्लैकबोर्ड ऑयली हो गया है, स्मूथ हो गया है, तो आपने देखा होगा कि उस वक्त ब्लैकबोर्ड पे अगर हम चौक से लिखें भी तो नहीं लिखाता है ना. इफ द ब्लैकबोर्ड बिकम स्मूथ ऑयली देन वी आर नॉट एबल टू राइट विद द चौक, बिकॉज वहां पे क्यों हम नहीं लिख पा रहे, क्योंकि वहां पे अगर हम चौक को लिखते हैं तो वहां पे वो चौक जो है वो ब्लैकबोर्ड पे रब नहीं होगा. क्यों रब नहीं होगा, क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन क्या हो गया है, रिड्यूस हो गया, कम हो गया है. बिकॉज फ्रिक्शन रिड्यूस हो गया है, सो चौक ब्लैकबोर्ड पे रब नहीं होगा, और रब नहीं होगा तो उसके पार्टिकल्स ब्लैकबोर्ड से स्टिक भी नहीं होंगे. दैट मीन्स वी आर नॉट एबल टू राइट विथ चौक ऑन ब्लैकबोर्ड इफ देयर इज नो फ्रिक्शन. ओके, ऐसा सिमिलर आपने कॉपी में भी देखा होगा. अगर कॉपी के पेज में ऑयल आ गया है, अगर हम वहां पे पेन से लिखते हैं तो लिखा आता है, नहीं लिखा आता. क्यों नहीं लिखा आता, क्योंकि ऑयल जो होता है वो पेपर को क्या कर देता है, शाइनी और स्मूथ कर देता है, और वहां पे फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है. क्योंकि फ्रिक्शन नहीं होता है, इससे पेन की जो इंक है, पेन की जो इंक है पेपर पे नहीं आती है. ठीक है. So when something is written with the chalk on the blackboard, its rough surface rub off some chalk particles which stick to the blackboard. And if an object started moving, it could never stop if there were no friction. And we all know if any object started moving and if there is no friction, then the object will not stop. We could not fix a nail on the wall or tie a knot or construct a building without friction. So friction is necessary for us. On the other hand, friction is an evil too. फ्रिक्शन जैसे हमारे लिए बहुत जरूरी है, फ्रिक्शन जैसे there are lots of benefit of friction, there are some disadvantages of friction also. Okay, see here, what are the disadvantages? Can friction also produce heat? Yes, friction also produce heat, है ना. आप देखे होंगे when we rub our both the hands, जब हम अपने दोनों हाथों को रगड़ते हैं तो वहां पर भी क्या होता है, फ्रिक्शन प्रोड्यूस, वहां पे हमारे दोनों हाथों के बीच में क्या होता है, फ्रिक्शन होता है ना. सो जब हम रब करते हैं तो क्या होता है, हमारे दोनों हाथों में क्या होती है, हीट प्रोड्यूस हो जाती है. क्यों, ड्यू टू द फ्रिक्शनल फोर्स, है ना. वैसे ही देखो, जब गाड़ी बहुत स्पीड में अगर रोड पे चल रही है तो कुछ समय बाद क्या होता है, उसमें भी आपके क्या होते हैं, हीट प्रोड्यूस होता है, व्हील्स क्या होते हैं, गर्म हो जाते हैं, हीट प्रोड्यूस हो जाती है. ठीक है. सो और अगर हम किसी सरफेस पे अगर हम फिंगर्स को बार बार रब करें तो हमारे फिंगर्स भी क्या होते हैं, हॉट हो जाते हैं ना. सो टू अंडरस्टैंड दिस, vigorously rub your palm together for a few minutes, है ना. आप अपने दोनों palms को फास्टली क्या करो, few minutes के लिए रब करते रहो. ठीक है. Do they become warm? Yes, है ना. Now you learn that friction produces heat. When you stick a match stick against the rough surface, देखो मैच स्टिक भी, मैच कैसे हम लोग जलाते हैं, जब मैच स्टिक को क्या करते हैं, मैच स्टिक को क्या करते हैं, रब करते हैं मैच बॉक्स के सरफेस पे. तो मैच बॉक्स का जो सरफेस होता है ना, वो क्या होता है, वो आपका रफ सरफेस होता है. तो जब मैच स्टिक को उसमें क्या करते हैं, रब करते हैं, तो बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन वहां पे क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है, और जो मैच स्टिक है उसमें जो क्या होता है आपका, उसमें जो आपका बारूद लगा होता है उसमें क्या होती है, आग लग जाती है. ठीक है. सो इट कैचेस फायर ड्यू टू द जनरेशन ऑफ हीट बाय फ्रिक्शन, है ना. आप लोग ने पुराने टाइम में भी देखा होगा कि जो हमारे एंशियंट्स थे वो क्या करते थे, वो स्टोन्स लेके क्या करते थे, फायर प्रोड्यूस करते थे. तो कैसे करते थे, स्टोन्स को रब करते थे, रब करते थे, करते रहते बहुत टाइम तक. जब दोनों स्टोन्स बहुत ज्यादा रब करते करते हीटेड हो जाते थे तो उसमें से क्या प्रोड्यूस होती थी, फायर. ठीक है. So and that also because of the friction. So there are so many other examples in which friction generate heat. In fact, when when we operate a machine, the generated heat causes much wastage of energy. So now method of increasing and reducing friction, how we can increase and how we can reduce the friction. ठीक है. Simple thing, if we want to increase the friction, we have to increase the roughness, and if we want to reduce the friction, we have to increase the smoothness of the surface. Okay. So have you ever brought
have you ever thought why the sole of your shoes is grooved? ड्यू टू, आपने देखा होगा ना आपके जो जूते के जो सोल्स होते हैं, शूज के जो सोल्स होते हैं, वो कैसे होते हैं? इरेगुलर होते हैं ना। क्यों होते हैं? ड्यू टू दिस ग्रूव्स शूज प्रोवाइड बेटर ग्रिप ऑन द फ्लोर। अगर मान लीजिए आपके जो शूज हैं या स्लीपर्स हैं, अगर उसका जो सोल है, अगर नीचे का सोल है वो अगर पूरा फ्लैट हो जाए, स्मूथ हो जाए, तो क्या होगा? आप स्लिप हो जाओगे, है ना। तो उसमें क्या होते हैं? ग्रूव्स होते हैं, जिससे क्या होती है? ग्रिपिंग देती है बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन, so that we can move safely. Similarly, the treaded tires of cars, trucks and bulldozers provide better grip with the ground. आपने टायर्स को भी देखा होगा, उसमें क्या होती है? इरेगुलर होता है। इरेगुलर होने से क्या होता है? वो फ्रिक्शन प्रोड्यूस करता है। ओके, सो वी deliberately increase friction by using brake pads. अगर हमें हमारे vehicles में friction improve करना है तो हम लोग क्या use करते हैं? Brake pads in the brake system of the bicycle and automobiles. When we are riding a bicycle, the brake pad do not touch the wheels, है ना। जब हम साइकिल या बाइक को रन करते हैं, मतलब राइड करते हैं, उस वक्त हम देखा होगी जो ब्रेक होता है वो व्हील्स को टच नहीं करता। लेकिन जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, बट व्हेन वी प्रेस द ब्रेक लीवर, जैसे हम ब्रेक लीवर को प्रेस करते हैं, दीज पैड्स अरेस्ट द मोशन ऑफ द रिम ड्यू टू द फ्रिक्शन। तो जैसे ही हम ब्रेक लीवर को प्रेस करते हैं तो जो ब्रेक पैड्स होते हैं वो क्या करते हैं? व्हील को टच करते हैं, व्हील को टच करते हैं। उससे क्या होता है? उसमें फ्रिक्शन के कारण क्या करता है? मोशन को स्टॉप हो जाता है। मोशन स्टॉप होता है मतलब आपकी गाड़ी रुक जाती है। ठीक है। You might have seen that कबड्डी players rub their hand with the soil, है ना। आपने देखा होगा जो कबड्डी प्लेयर्स होते हैं वो अपने हाथों पे क्या लगाते हैं? सॉइल लगाते हैं, मिट्टी रगड़ते हैं। उससे क्या होता है? उनके हाथों में जो स्वेट आता है, स्वेट के कारण जो उनके हाथ स्मूथ हो जाते हैं। तो अगर हाथ स्मूथ हो जाएंगे तो वो अपने अपोनेंट्स को पकड़ नहीं पाएंगे, उनकी ग्रिपिंग लूज हो जाएगी। इसलिए वो लोग क्या करते हैं? सॉइल को रब करते हैं। तो सॉइल रब करने से क्या होता है? उनके हाथों में फ्रिक्शन इंप्रूव होता है। फ्रिक्शन इंप्रूव होने के कारण उनके हाथों में ग्रिपिंग आती है और वो अपने अपोनेंट्स को इजीली पकड़ सकते हैं, कैच कर सकते हैं। ठीक है, फॉर बेटर ग्रिपिंग ऑफ देयर अपोनेंट्स। जिमनास्टिक्स gymnasts for better gripping apply some coarse substances on their hands to increase friction. Then, is friction necessary in every situation? क्या friction हर समय जरूरी है? No. In some situation, however, friction is undesirable. सपोज अगर आप गाड़ी चला रहे हो, अगर आपकी गाड़ी के जो सपोज आप बाइक चला रहे हो, कुछ भी अगर उसमें फ्रिक्शन, व्हील्स में अगर फ्रिक्शन इंप्रूव हो जाएगा तो वो क्या करेगा? साउंड प्रोड्यूस करेगा। तो उसके लिए वो साउंड प्रोड्यूस ना करें। और क्या होगा? अगर उसमें फ्रिक्शन इंप्रूव हो जाएगा तो क्या होगी? वो बहुत ज़्यादा ऑयल यूज़ करेगा, है ना। ठीक है, एनर्जी यूज़ करेगा। तो वहाँ पे हम फ्रिक्शन को रिमूव करने के लिए क्या करते हैं? ऑयलिंग करते हैं ऑयलिंग या फिर ग्रीसिंग करते हैं, व्हील्स में करते हैं, है ना। लीवर ब्रेक में भी ऑयलिंग करते हैं। सो दैट इन दिस सिचुएशन वी मिनिमाइज इट। फॉर एग्जाम्पल, वी स्प्रिंकल फाइन पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड टू रिड्यूस फ्रिक्शन, है ना। जब कैरम खेलते हैं तो कैरम बोर्ड पे हम क्या स्प्रे करते हैं? क्या स्प्रिंकल करते हैं? पाउडर। पाउडर क्या करता है? कैरम बोर्ड में फ्रिक्शन को रिमूव कर देता है। उससे क्या होती है? आपके जो स्ट्राइकर होता है वो बहुत स्पीडली क्या करता है? मूव करता है। ओके, you might have noticed that when a few drop of oil are poured on the hinges of door, the door move smoothly. जब doors क्या करते हैं? आवाज करते हैं या वो इजीली मूव स्मूथली मूव नहीं करते तो हम उसमें क्या करते हैं? ऑयलिंग करते हैं। A bicycle and motor machine uses grease between the moving parts of these machine. Similarly, bicycle, cars, scooters, any motor machine सब में हम क्या करते हैं? ग्रीसिंग करते हैं ना। सो उसमें फ्रिक्शन क्या हो जाए? रिड्यूस हो जाए। In the above cases, we want to reduce friction in order to increase efficiency. When oil, grease, or graphite is applied between the moving parts of a machine, a thin layer is formed there and moving surface do not directly rub against each other. तो oil क्या करता है? ऑयल किसी भी मशीन के पार्ट्स को एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से रोकता है। तो जब पार्ट्स एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आएंगे तो उनके बीच में फ्रिक्शन, मतलब वो रब नहीं होंगे, और रब नहीं होंगे तो फ्रिक्शन भी प्रोड्यूस नहीं होगा। इंटरलॉकिंग ऑफ irregularities is avoided to a great extent so that movement become smooth. The substances
which reduce friction are called lubricants. Oil, grease, and the substances which reduce the friction are called lubricants. In some machine, it may not be advisable to use oil as lubricant. An air cushion between the moving part is used to reduce friction. Then friction can never be entirely eliminated because no surface is perfectly smooth. Some irregularities are always there. है ना? So it is a fact. We cannot reduce the friction completely. है ना? If we use oiling, greasing, whatever, then also some little bit of friction will be there. Okay. So we'll okay, students, now I'm stopping here and the wheels reduce friction that we will see tomorrow.